Okay, now there is a concept of finding integral and fractional part of a expansion. Expansion कैसी होगी अब की बार? A plus b root c raised to power n. A, B and C can have different values. तो इनको कैसे solve करते हैं? तो मैं भी step process बता रहा हूँ. Just write the algorithm and then we'll take one or two questions to understand कि ये काम कैसे करता है. तो algorithm क्या कहती है कि सर step one जो है, what you do is that you assume that obviously any expansion, whatever it would be, it will have some integer part, let's denote it by I, and it will have some fractional part, let denoted with f. ठीक है. Now step two, and I'll again realize, make you realize कि वो क्यों हो रहा है. अगर यहाँ पर बीच में कहाँ पर, so if this expression was having a positive sign, then assume a function, assume g to be equal to a minus b root c. And if it was a positive negative earlier, you will have to take a negative sign. ठीक है ना. जनरली वो नहीं दिया जाएगा, आपको हमेशा प्लस वाला ही दिया जाता है. क्यों दिया जाता है? क्यों? You will find that this, because of this, g will always be a fraction. G in itself will lie between 0 and 1. G will be a fraction. ठीक है ना. जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमेशा ही ऐसे होंगे. You don't have to worry about it. Now what we will have to do, step 3. And step 3 and step 4 are actually identical. So there are two ways of solving now. Either you will add g or you will subtract g. There are two ways. ठीक है ना. Add g करूंगा तो मेरे पास एक चीज आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, that I plus g plus f. ठीक है. तो वहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, ये मैं भी सिर्फ कंक्लूजन बता रहा हूं, बट यू गाइस विल डू क्वेश्चन एंड देन यू विल बी एबल टू रियलाइज की इंपॉर्टेंस क्या है. दैट कि यहां से हमारे पास आएगा f प्लस g इज इक्वल टू 1 इफ यू डू एडिशन, और अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आएगा दैट फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू g ओनली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल फाइंड द आंसर्स. ठीक है ना. देखते हैं क्वेश्चंस, तब समझ में आएगा, तभी कर पाओगे ये. ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस इज फाइंड द GIF of root 2 plus 1 raised to power 6. That means एक तरीके से आपसे पूछा क्या गया है, इंटीजर पार्ट. इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ के यू डू नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड. ठीक है. और कोई भी आपको एक्सपोनेंशियल कुछ भी आ जाए, बाइनोमियल एक्सपेंशन, you know that anything can be written as sum of its integer part and sum of its fractional part. In this question we are only interested to find the value of I, that is the integer part of this, right? So what was our step? Our step was that if there was root 2 plus 1, right? So we will assume what? G, another function which is root 2 minus 1 raised to power 6. Some of you would have thought, sir, 1 minus root 2, since the power is 6, 1 minus root 2 or root 2 minus 1 is the one and the same thing. Up now, how you will decide that, sir, I have to add or subtract G? वो कहां से हिंट समझ में आती है, देखो. तो इंटीजर पार्ट निकालना है. इंटीजर पार्ट दैट मींस शुड बी फ्री ऑफ इर्रेशनल. इर्रेशनल नंबर आएगा तो इंटीजर कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते. एक बार जरा इसको लिख के देखें, ये क्या बना 6c0, ये क्या होगा रूट 2 की पावर 6, फिर होगा 6c1 रूट 2 की पावर 5, फिर आएगा 6c2. सर जो ये 2 वाली पावर है ना, ये वाली जो इवन पावर्स आ रही है 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दीज आर इंटीजर. क्यों इंटीजर? इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, याद रखिएगा. NCR is always integer. There should not be any confusion about this. NCR is always an integer answer, right? ये मत सोचना कि सर NCR भी तो फ्रैक्शन आ सकता है. So प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर शुरू होती है, जहां पर रूट 2 की पावर ऑड आती है, बिकॉज दिस विल बी इर्रेशनल क्वांटिटी. इसको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना. तो अगर हम लास्ट टर्म तक जाते तो ये था 6c6 और रूट 2 तो आता ही नहीं अब की बार. तो दैट मीन्स क्वेश्चन का बेसिक अगर हम बात करें तो हमें समझ में आता है कि हमें ये एलिमिनेट करने हैं. We want to eliminate these kind of terms because if we eliminate these kind of terms then we will get our answer. अब हमने g की वैल्यू क्या ली थी, what we guys have taken to be g का लिया माइनस. तो जब माइनस लिया था, ओ सर ये माइनस आ जाता है यहाँ पर, बिकॉज -1 शुरू हो जाएगा ना. अब फिर माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस -1 ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव शुरू हो जाएगी सीरीज. और उससे फायदा क्या होगा, हमें क्या चाहिए, हमें तो हमेशा इर्रेशनल वाली टर्म्स को गायब करना है. अब वो गायब कैसे होंगी, मैजिक कैसे अगर होगा. ओके सर, नाउ इफ वी ऐड देम
then the magic happens. So that means in this question you will have to add g. तो आपका LHS बनेगा क्या? ये तो था आपका I plus F, अब की बार बेसिकली यू हैव एडेड g. ये क्या बना? 2 टाइम्स, ये तो सर 6 E0, ये हुआ 2 क्यूब. अब मैं 2 की पावर क्या था? 1/2 था ना, 6 और थी तो 2 क्यूब हो गया. फिर आया 6E2, ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा सर. फिर आएगा 6E4, सर 2 हो जाएगा. और फिर आएगा सर 6 खत्म. ये कोई भी डाउट इसमें हमें कि ये इंटीजर वैल्यू होगी? नो सर, देयर इज नो डाउट, दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू. 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एनसीआर आ रहा है ऑलवेज. ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी फैंटास्टिक वैल्यू. सर ये कैसे आएगी वो देखते हैं. अच्छा, यहां पर अभी अगर हम देखें, दिस वाज आई प्लस एफ प्लस जी. And when we did the algorithm, we said that sir, अगर I plus F करेंगे, I plus F plus G, तो F plus G will always be equal to 1. सर ये कहां से आया? अब देखो, RHS is integer. अभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, but R RHS is integer. So that means this should also be integer. ये भी तो integer होना चाहिए ना. ठीक है, तो इसमें I तो integer है, तो बचा क्या? That gives us the conclusion that F plus G क्या होना चाहिए? Integer. फिर हमने बोला था कि सर एफ तो क्या है? फ्रैक्शन है. और हमने बोला था जी भी फ्रैक्शनल होता है हमेशा. क्यों सर? आ जाओ यहाँ चेक करते हैं. यहाँ पर जी है √2 - 1. √2 क्या होता है? 1.414. तो ये क्या हो गया? 0.414. और उसकी पावर रेज करूंगा, दैट मीन्स रेजिंग द पावर ऑफ अ फ्रैक्शन विल अगेन बी अ फ्रैक्शन. तो सर ये भी फ्रैक्शन है. सर जी इज फ्रैक्शन. ठीक है, विच इज नॉन जीरो इन नेचर. ये भी समझ में आ रहा है, जीरो नहीं है. तो दो फ्रैक्शंस का सम इंटीजर हो, ढंग से सुनिएगा, दो fractions, addition of two fractions is integer. Yes, it is only possible is 1. दो fractions को ऐड करते हैं और ऐड करके आंसर 1 आता, कोई और अगर इंटीजर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा. सर 2 क्यों नहीं आ सकता? लेके देखो, 0.999 plus 0.999, it will be still 1.9 something, but it will never be equal to 2. तो अगर उसको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो वो एक ही वैल्यू ले सकता है. दैट्स इट. अच्छा सर -1, अरे बाबा फ्रैक्शंस तो नेगेटिव होते ही नहीं है. ठीक है, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शंस ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1. तो इसीलिए बोला गया था ये अगर इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा? 1. तो ये क्वेश्चन आपका क्या बना? I plus 1 इज इक्वल टू इंटीजर, जो आपने अभी सॉल्व करना है. दैट्स द केस. सो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो देखो, ये वाला जो इंटीजर वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 198. सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, यू नो दैट सर दिस इज इक्वल टू 198. खत्म. क्वेश्चन कम्स दैट आई इज 197. सो दैट मींस दिस फ्रैक्शन विल बी 1.197 पॉइंट समथिंग. तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? 197. एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस. ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ये कहते हैं r इज इक्वल टू 6√6 प्लस 14. बहुत अजीब सा है सर ये कुछ. हाँ देखो, अजीब सा कुछ भी नहीं है. एक चीज और समझाता हूं तुम्हें, दैट इफ यू सी, अगर मैं, ऑब्वियस ही बात है, अगला जो मेरा टारगेट होगा सर, इसका माइनस वाले के साथ कुछ करना होगा, है ना. एंड वी हैव रेड दैट माइनस वाला जो टर्म होता है वो हमेशा फ्रैक्शन होता है. सर वो कैसे पता चलता है आपको? 6√6, √6 लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, लेट्स से बिटवीन 2 and 3. और ये एक्चुअल में 6√6 इज अ 14 पॉइंट समथिंग. क्यों? वो एक डबल ट्रिपल हिंट मिल रही है, आप कैलकुलेटर यूज करके देखना. दो ट्राई करना बिना कैलकुलेटर के करने के, बट स्टिल टू सेव टाइम, अगर 6√6 -14 है तभी वो क्या बनेगा? आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन पाएगा, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी. ठीक है, तो ये आपको हमेशा ऐसे ही एक्सप्रेशंस मिलेंगे जो इसी तरीके से सिंप्लीफाई हो रहे होंगे. डू नॉट वरी अबाउट इट. नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, इट सेज f इज इक्वल टू r माइनस जी आई एफ आर. दैट मीन्स कुछ भी नहीं है. अगर मैं r को i प्लस f लिखता तो f को बता रखा है. आपसे पूछा जा रहा है आर एफ. अच्छा, आर एफ जब दे दिया जाए ना, तो ये एक और बड़ी हिंट होती है कि इस बार जी जो है ना सब्ट्रैक्ट होगा. क्यों? अब देखते हैं. चलो, आर जो था मेरा था 6√6 प्लस 14 की पावर 2n+1. एक काम करते हैं, इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ, बिकॉज आई नो दैट लॉट ऑफ स्पेस विल बी यूटिलाइज, है ना. तो अगर हम 6√6 को प्लस 14 को एक्सपैंड करते हैं,
सो आई हैव रिटन द एक्सपेंशन, ये समझ में आता है कि इसको इस तरीके से एक्सपैंड होगा। और इस बार प्रॉब्लम कहां पर है, 6 √6 इरेशनल टर्म है। इरेशनल टर्म के लिए आपको क्या चाहिए, √2 कब हटेगा, जब इवन पावर होगी। √6 है, सॉरी √2 नहीं, √6 विल बी एलिमिनेटेड व्हेन यू हैव इवन पावर। 2n+1 तो ऑड है, तो इसका मतलब ऑड टर्म्स इस बार कैंसिल आउट होनी चाहिए। तो अगर मैं 6√6 -14 लगाता हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि पहली वाली टर्म तो देखो अभी भी यही बननी है सर, है ना। यस सर, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। और अगली टर्म क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, अब की बार वो -14 की वजह से फैक्टरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो अब की बार ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इस बार क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन करता हूं। अब हमने सब्ट्रैक्शन के केस में बोला था दैट f विल बी इक्वल टू g। लेट्स सी दैट लॉजिक। सर वो कहां से आ रहा है लॉजिक, नोटिस करो जब सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी प्लस नहीं, यहां आएगा माइनस, बिकॉज ये हैव सब्ट्रैक्टेड। तो जब सब्ट्रैक्शन करा, तो ये अभी भी क्या होगा, 2 टाइम्स 2n+1 c 6√6, ठीक है, 2n और एक 14, और ऐसे आगे चलता रहेगा। इसमें अच्छी बात क्या थी, हमें इसकी टेंशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये कैसा है, इंटीजर। सर हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट दिस इज इंटीजर। देखो 6√6 की पावर 2n, तो √6 वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, तो वो इंटीजर बन गया। और एनसीआर इज ऑलवेज इंटीजर, और 14 इन इटसेल्फ इज इंटीजर। सो एवरीथिंग, इफ यू मल्टीप्लाई ऑल द इंटीजर, द आंसर विल बी इंटीजर। बाहर भी 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीजर। सो दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी एन इंटीजर, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा ये था i प्लस एफ, और ये था दिस शुड बी इंटीजर। ठीक है, I is already an integer, so that implies that f minus g should be an integer. Now this is another logic which you will have to remember कि sir अगर दो मेरे पास fractions हैं, f and g are both fractions, and in maths fractions are never negative, ये याद रखना है भाई, लोगों को नहीं तो negative fractions भी याद आने शुरू हो जाते हैं। और f minus g is equal to integer, कौन सा नंबर हो सकता है, सोचो, इंटीजर। जीरो ही तो हो सकता है सर, -1 हो सकता है, कैसे होगा, सोचो। -1 के लिए क्या चाहिए था, g को -1, f को 0। f 0 हो सकता है, बट g -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना यार। f सर नेगेटिव हो जाए, f -0.2 हो जाए और g 0.8 हो जाए सर, माइनस, अरे f नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, फ्रैक्शन है ना भाई। सो f प्लस g अगर ऐड करता हूं, इंटीजर बनता है, दैट कैन बी ओनली 1। f माइनस g करता हूं, इंटीजर आता है, तो एक ही आंसर होता है 0। That is why this comes out to be 0, which implies that f is equal to g। सर इससे फायदा क्या हुआ, है ना, हमें आर एफ चाहिए था। अच्छा f तो पता नहीं था पर सर क्वेश्चन में, ओ गॉट इट सर, f नहीं पता था ना हमें क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए था, वी वांटेड टू फाइंड, our target was to find rf। now instead of rf we could have used rg, and it becomes even more simpler to see because ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैटेगरी, देखो। और इसका जो आंसर आएगा इट विल बी इवन इवन बेटर। अब ये क्या हुआ अंदर, ये हुआ सर 6√6² -14² रेस टू पावर 2n+1, ये बनेगा। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये क्या बन गया, अंदर देखो 6 इंटू दिस, ये बनेगा क्या, दिस विल बी समथिंग ऑफ 6³ -196, 6³ 216। ओ ओ सर जैकपॉट, 20 रेस टू पावर, आसानी से हमारा आंसर आया। सर ये आंसर आ गया 20 रेस टू पावर 2n+1। दैट्स इट, आंसर मैच हो रहा है क्या सर कोई, यस सर, सी ऑप्शन इज मैचिंग। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस like this, f minus g kind, and also you can now imagine f plus g kind as well।